بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں. نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور نہ صرف وہ کہا، ساتھ ہی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور متعصب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ ان کو بھیج دیا. یعنی مینوپلیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے. پھر 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار آپ کو بتا رہا ہوں. 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ جی نیب کے وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے. اور وارنٹ آف اریسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیب کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا. جب انٹیریئر سیکٹری کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا. پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں، یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتاری درست ہے اور جائز ہے، جس کو سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چارج شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف. پھر آپ یہیں تک کام محدود نہیں رہا. آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب ٹریان والے ایشو پہ ان کو نااہل کیا جائے عمران خان کو. اس کے اوپر اعتراض ہوا عامر فاروق صاحب کے اوپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 ممبر بینچ بنا دیتے ہیں. 3 ممبر بینچ بنتا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، ارباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب. اور عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ. 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر صاحب فیصلہ دیتے ہیں ہمارے حق میں، ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے. ویب سائٹ پہ آنے کے بعد 1 دن بعد پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق. اور آج تقریباً 8 مہینے گزرنے کے باوجود وہ ججمنٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی. یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والے کیس میں جب جیل ٹرائل کا حکم ہو گیا، یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح آج الیکشن کمیشن نے فرمایا ہے. عامر فاروق صاحب نے کہا بالکل جیل ٹرائل درست ہے. جب وہ جیل ٹرائل والے آرڈر کو چیلنج کیا ڈویژن بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور زیب کی سربراہی میں، تو انہوں نے کہا بالکل یہ ٹوٹل غلط ہے. جیل ٹرائل اور اوپن کورٹ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن وہ انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے. اسی طرح کوئی بھی کیس آج تک ایسا نہیں ہے جو عامر فاروق صاحب نے انکار کیا ہو، اس کے باوجود کہ ہم نے بارہا ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں اور آپ فیصلہ نہ کریں. دیکھیں اگر انصاف کے نظام کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر افراتفری ہوتی ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، پھر بددلی ہوتی ہے، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر مایوسی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد ایک اعتماد کا ادارہ ہوتا ہے، وہ ہے انصاف کا نظام. جس ملک سے انصاف کا نظام اٹھ جائے، یعنی وہ حضرت علی کا قول آپ سامنے رکھیں، کہا گیا کہ کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. انصاف کی ضد ظلم ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا. جب میں نے یہاں بارہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں کوئی ورکر کنونشن کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں اگلے دن پرچہ ہو جاتا ہے، سیم ڈے پرچہ ہو جاتا ہے، جبکہ پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت ہے. ہمارے لوگ آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں، آج بھی عدالتوں میں نہیں پیش کیا جا رہا. آج بھی ہمارے کئی دوست اٹھائے گئے ہیں پچھلے 2-3 دن پہلے، آج پٹیشن فائل کر رہے ہیں یہاں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ الیکشنز کی طرف آپ جا رہے ہیں آج اس جبر اور خوف کی فضا میں، جب آپ کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی،
आज 90% आवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। अगर आप उसको इजाज़त नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाज़त नहीं देते कि वो फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बताएं इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा? फिर इस सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कैसे करेंगे? फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे? क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं लगा रहे? क्या आप इस मुल्क की जड़ें खोखली नहीं कर रहे? क्या आप अपने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को जो इस वक्त माशी तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं, क्या उसको आप मज़ीद बढ़ोतरी नहीं दे रहे, ना कि उसमें कमी लाएंगे? देखें, इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम की खातिर, इलेक्शन होते हैं ताकि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके। लेकिन लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि जिस वक्त कोरोना के बावजूद इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी, 6.1%, 6.1 या 6.2% GDP थी, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता, और आपकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो सारे अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि 16 रुपये जो बिजली का यूनिट था आज 70 रुपये से ज़्यादा चला गया है। आज जो सूद की है 22% या 25% तक पहुंचा दिया है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंडस्ट्री लगाना। ये इस बदतरीन हालत में इस मुल्क के मसाइल को हल करने का वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा, और हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते इन एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स। शेख सिंह साहब, ये केस जो है इमरान खान और फवाद चौधरी के धमकियों से शुरू हुआ और आज इसका इख्तिताम हुआ, तो आप अभी भी समझते हैं कि फवाद चौधरी और इमरान खान साहब को उस टाइम धमकियाँ देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को? कभी किसी ने धमकियाँ नहीं दी। हम अगर इंसाफ का तकाजे की आज बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के नाइंसाफ़ी अगर करेंगे तो ये गलत है। मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो ये गलत है। ना हम धमकी देने के कायल हैं, ना हम धमकियां देते हैं, लेकिन हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन मुनसिफ को मुनसिफ होना चाहिए, ना कि वो पार्शल अगर हो जाएगा तो वो फिर मुनसिफ की कुर्सी पे बैठने का अहल और हकदार नहीं होता। ये बताइएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को आज चार्जशीट दे दी है, अब आपको इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, इस सारे मामले में अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा सर? देखें, हमें इलेक्शन कमीशन पे पहले भी एतबार नहीं था, आज भी एतबार नहीं है, और उनका किरदार, उनका कंडक्ट ये साबित करता है कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि एक तरफ तो आप इमरान खान के खिलाफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं हैं। हमने बारहा यहाँ दरखास्तें दी हैं कि हमें वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी जगह इंटरफेयर नहीं किया। आज इलेक्शन का शेड्यूल हो चुका है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है जो लोग उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि क्या इलेक्शन कमीशन ये पूछे कि जनाब आप केयर टेकर जो बैठे हुए हो, जो जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत कायम कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि वर्कर कन्वेंशन करने की क्यों आपको इजाज़त नहीं है, क्यों आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं है? ये एक पार्टी को क्रश करने का और डिसमेंटल करने का जो तरीका है वारदात लंदन प्लान के ज़रिए शुरू हुआ था, आज उसको बंद किया जाए। और अगर इसके ऊपर ये नहीं पूछते हैं बल्कि ये भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं और जा कर के ये भी जेल ट्रायल में उसी तरह करते हैं जो कुछ के नीचे हुमायूं दिलावर ने किया था, तो या जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, तो फिर हमें काबिल अफसोस हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फिर ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे हमें ये चाहिए कि ये आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय उसके बरक्स काम कर रहे हैं। शाहीन साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान जो है
वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रहे, इसके अलावा फवाद चौधरी वो पीटीआई छोड़ चुके हैं, असद उमर सियासत ही छोड़ चुके हैं, तो आप अपनी एनर्जीज क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आपको इलेक्शंस करीब है, उस तरफ फोकस करें। तो अब तो ये बुनियादी मेंबर भी नहीं है बहुत सारे लोग पार्टी के जिनके लिए आप केस लड़ रहे हैं। भाई हमारे चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे, और वही अभी भी फैसले करेंगे, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर। और इस साजिश के तहत, जो साजिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो सारी साजिशें हमारे खिलाफ जारी हैं, उस साजिश को अवॉइड करने के लिए हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर अपना चेयरमैन मुंतखब किया है, ताकि हमें बल्ले के निशान से महरूम ना किया जाए। फॉर दैट पर्पज़ हम ये कर रहे हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनर्जी बचा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता, हमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं छोड़ता। पिछली तारीख पे कहा गया था कि 6 दिसंबर तारीख है, 6 की बजाय बगैर कहे 30 नवंबर तारीख रख दी गई। उस दिन मुझे कहा कि जी हम आपको सारे ये रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद बहस सुनेंगे, फिर फैसला होगा। ना रिकॉर्ड दिया, न बहस सुनी, फैसला पहले आ गया। और फैसला भी आकर के उनके किसी अहलकार ने सुना दिया, बजाय इस बात के कि इलेक्शन कमीशन आता, वो फेस करता, हम कम से कम उनसे सवाल जवाब करते। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से अब फैसले आ रहे हैं, आपके वकील ने, आपको आइडिया था पहले से ही किसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि पहले भी समाज अडयाला जेल में हो रही है। अच्छा सर, जिस तरह से अब सुना जा रहा है कि इलेक्शन में इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा लायर्स को मौका देंगे, तो अब जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, लायर कम्युनिटी में भी एक बेचैनी है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही। सर, कोई तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं लायर्स की, क्योंकि आपको जिस तरह से आप पाबंदियाँ लग रही हैं और लोग उठाए जा रहे हैं, तो देखें, तहरीक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तहरीक ये है कि आज बंदे बंदे के तमाम 90% अवाम के दिलों में बसता है वो इमरान खान, उनके दिलों में है आज पीटीआई। आज हमारी तहरीक अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। तहरीक हमारी ये है, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया जानती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी पाबंदियां आप लगा सकते थे लगाएं। सिर्फ 1.5 साल, ये जब से वो जेल में गए हैं, सिर्फ आपके 3-4 बंदों को, सहाफ़ियों को मिलने की इजाज़त मिली उस दिन जेल में, और वो भी क्या, न कैमरा ले जा सकते हैं, न मोबाइल ले जा सकते हैं, न कलम लेके जा सकते हैं, न कागज़ लेके जा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, वो आते हैं, बाहर आकर के रिपोर्ट करते हैं, कैमरा का उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आज के बाद कोई किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नशर नहीं होगी। इमरान खान पे जिस तरह की पाबंदी है, मैं तर्जमान हूँ, सेंट्रल तर्जमान हूँ, मेरे ऊपर पिछले 1 महीने से पाबंदी है, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आ सकता। अगर ये आपका मीडिया की आज़ादी है, ये आपके बुनियादी हुकूक हैं, दरअसल कागज़ों में बुनियादी हुकूक मौजूद हैं लेकिन हकीकत में मुअत्तल हैं। कागज़ों में आइन मौजूद है लेकिन मुअत्तल है। कागज़ों में जमहूरियत है लेकिन उसका तमाशा किया जा रहा है, लेकिन जमहूरियत नहीं है। शुएब शाहीन साहब, आपने कहा कि सारे फैसले इमरान खान कर रहे हैं और अभी भी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ही हैं, तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, कि आप समझते हैं कि डमी इलेक्शन थे और गौर साहब के पास कोई इस टाइम मैंडेट नहीं है फैसला करने का? मैंने आपको वाज़े बता दिया, हमने साजिशों से होशियार रहने के लिए, हमने लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने गौहर साहब को मुंतखब किया है। वो हमारे चेयरमैन हैं और वो नोटिफाई करेंगे जो जो नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारे सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हमारे वो इमरान खान साहब हैं। थैंक यू।